Alok Shankar has joined. Hi Alok, you're the first to join in. Thank you. Can you hear me? Rajavardhan, thank you for joining. Come again. Can you hear me, guys? Mahiraj Singh has also joined from Namli. Welcome. Come on. Ranu Bhavisa. Come on. Good afternoon, Anand. Can you hear me? Just let's give 4 minutes, 5 minutes to everyone for joining. Hello. Come on, Gauri. Thanks, Nimesh. Thank you, Chinky Jija. Good to see you. Come on, Jija. Just give 5 minutes for people to join in. Let's give a few minutes for people to join in. देखिए Thamagani, Dheeraj Lakhan, Anand, perfect. Yeah. Come on, Jija, come on. अरे हुजूर खमा मैंने रिप्लाई किया है खमा जीजा शहनाज भाभी गुड टू सी यू Come on, come. अरे वाह निजाम भाई भी आए and the people still joining. I think let's give another 5 minutes. There's a huge amount of people probably. Anyway, so I think let's begin and let's introduce ourselves. My name is Ranjit. For the people who are new on the Namli Kitchen, you're welcome. Hello and Khamagani to all of you. My name is Ranjit Singh Namli and that's my wife, Poonam Namli, and we are here to have a live, we just thought of this plan that we'll have a live session and an interaction between our followers and friends just to see if we can, become better. So all your comments are much appreciated. If you can let us know what you feel about Namli Kitchen, if you've tried so far. Luckily, there's never been any complaints so far, except for a few minor changes and details, which were rectified. So coming to what Namli Kitchen concept was, let me just introduce what Namli Kitchen concept is and how we, planned this whole Namli Kitchen saga. So Namli is basically a ठिकाना which is जो मालवा के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर है जो 3 कवर्स करता है, 3 रियासतें कवर करता है, स्टेट्स कवर करता है, which is Sailana, which is very famous for its book called Cooking Delights. एक जावरा जो नवाबों का होता था और again very famous for the food. The culinary history of Javra has been legacy की तरह किया जाता था. And then the third is Ratlam. In 3 triangle के बीच में is where Namli is located. So we were in very close proximity to all the culinary delights of Malwa, whether it is the Muslim cooking or whether it is the Rajput cooking. So इस तरह से है जो मालवा का अगर देखा जाए तो अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो it was a very cosmopolitan state. In fact पूरा जो प्रोविंस है मालवा का, you will see all sorts of religion and people living in this region. So Malwa is not owned by one. They were ruled by the Nawabs, they were ruled by the Rajputs, they were ruled by the Marathas, and everybody's contribution towards food has been immense.
अब जो इंदौर में आया, आई केम आफ्टर 25 years बिकॉज आई वॉज लिविंग अब्रॉड, एंड व्हेन आई ट्राइड द फूड अराउंड एंड देन वी रियलाइज कि भाई ये जो खाने हैं मजा नहीं आ रहा है, यू हैव टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं था और बहुत जगह से मंगाने के बाद भी लगा कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, विद द क्वांटिटी, एंड अदरवाइज ऑल्सो द फूड वॉज नॉट प्रॉपर। तो फिर हाँ, और जब अपन कहते हैं ना कि जैसे घर की याद आ रही है, तो घर की ये जो सेंटेंस है ना, घर की याद आ रही है, वही समझ सकता है जो घर से दूर रहा हो, बिकॉज यू मिस द एलिमेंट ऑफ फूड ऑल्सो देयर। नाउ हाउ डू यू गेज दैट पर्टिकुलर पार्ट की घर की याद आ रही है और वो घर के मसाले नहीं मिल रहे और घर के खाने नहीं मिल रहे, और बिकॉज इट हैज द एलिमेंट ऑफ फूड। इधर के हर एक ग्रेन के अंदर, एवरी ग्रेन उसमें एक मिट्टी का अक्स भी जाता है, उस जगह के पानी का अक्स भी जाता है, और जो जैसा यू ईट इज व्हाट यू लुक लाइक, एंड जैसा अन्न वैसा मन, जैसे अपने यहाँ कहावत जैसा है। अन्न वैसा मन। और मालवे से अच्छे मन वाले लोग तो मैंने कहीं और देखे नहीं। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टू एनीथिंग, बट मेरे को खुशी है कि मैं मालवे का हूँ, और मुझे दिल से खुशी कि मैं एक इंदौर का बंदा हूँ, और वो कुछ न कुछ इस ट्रेडिशन को रिवाइव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं कि नामली की किचन के जो खाने हैं, ये कैसे मालवे के खाने कैसे हमारे तक पहुंचे। तो विद माई ग्रैंडफादर ठाकुर मान महिपाल सिंह जी बाबूजी, ही यूज्ड टू हैव अ एडीसी कम राइट हैंडमैन कम गुड मैन फ्राइडे, उनका नाम था खेमराज बा। सो वो खेमराज बा जो थे, वो नामली वॉज वेरी फेमस फॉर द ग्रे हाउंड रेसेस जो सेलाना में हुआ करती थी। सो वो ग्रे हाउंड रेस के ऊपर गए, और वो उस जमाने में आयरलैंड से कुत्ते आया करते थे, तो वो उस ग्रे हाउंड रेस में गए जहाँ पे लेट हिजाइनस जोधपुर वॉज ऑल्सो देयर, सेलाना हिजाइनस वॉज देयर, देयर वाज नवाब ऑफ रामपुर हु वॉज देयर। तो अब आप ये देखिए खाने वाले लोग थे वहां पे। उससे पहले एक रात को डिनर नामली में हुआ था, और इन सबको इनवाइट किया गया था नामली, और इन्होंने खाने खाए थे, और ये अगले दिन ग्रेहाउंड रेस शुरू हुई सेलाना में। जो नामली का ग्रेहाउंड आइलैंड से मंगाया गया था, उसका नाम था मीची, वो हार गई उस रेस में, और जोधपुर हिजाइनस के जो डॉग था वो जीत गए। तो शर्त के हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई आप हुजूर फरमाइए क्या क्या आपके शर्त दे सकते। तो उन्होंने जोधपुर हिजाइनस आस्क्ड फॉर द नामलीज कुक खेमराज बा कि ये कुक मेरा हो गया। अपेरेंटली वो कुक खेमराज बा जो थे वो जोधपुर चले गए। मैनी ईयर्स पास ही लर्न द राजपूत कुकिंग, और मेवाड़ की जो कुकिंग है वो उन्होंने सीखी, इनकलकेटेड देयर। फाइनली एक और ग्रेहाउंड रेस हुई अपेरेंटली 1930s में। नवाब रामपुर हैड डेवलप्ड दिस ब्रीड कॉल्ड द रामपुर हाउंड, उन्होंने उसको उतारा। अपेरेंटली वो रेस जीत गए। वो की वही बात हुई, नवाब साहब रामपुर सेड कि भाई ये जो आपका कुक जिसने कल रात को खाना बनाया था वो मेरा हो गया। सो नाउ खेमराज बा इज गॉन फ्रॉम नामली टू जोधपुर, एंड जोधपुर नाउ ही इज ट्रेवल्ड टू रामपुर। रामपुर के लिए ये कहा जाता था कि हर एक डिश के लिए एक कुक था, मतलब कलनरी एक्स्ट्रावेगेंजा किसको बोल सकते हैं, वो रामपुर का एक खासियत थी। खेमराज बा भी वहीं घुस गए। एट द एज ऑफ 90 समटाइम्स ही वांटेड टू रिटायर, ही वांटेड टू कम बैक टू नामली, सो ही रिक्वेस्टेड नवाब साहब रामपुर कि साहब अब मैं रिटायर हो गया हूं, मैं वापस नामली अपने गांव जाना चाहता हूं। व्हेन ही केम बैक, ठाकुर साहब नरेंद्र सिंह जी नामली made him write and pen down every single recipe and every single detail what he's learned in entire span of his career. और वो किताब जो थी अपेरेंटली नामली में सब राधा स्वामी बन गए। माई फादर, माई ग्रैंडफादर, सो सब राधा स्वामी बन गए, तो नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। ये किताब कहीं ना कहीं पड़ी रह गई, एंड नोबडी यूज्ड इट। अपेरेंटली इट रीच्ड मी, आई हैव लर्न्ड माई कुकिंग फ्रॉम माई मदर, और मम्मा, सबकी माँ का हाथ का खाना तो लाजवाब होता ही है डेफिनेटली, पर मेरी माँ ने जो हम लोगों को जो पैलेट ट्रेन किया है हमारा, वो कुछ बहुत अच्छा ही ट्रेन कर दिया। सो नाउ वी recognize what is good food and what is good quality food, and that is where she is my guru. जब उनसे सीखते सीखते उस करने गए, तो ये किताब मेरे पास
मेरी भुआ की तरफ से आई कि ये मे बी हैव अ लुक इट टू दिस, एंड सिंस यू कुक एंड यू एंजॉय कुकिंग, इसको देखो जरा, इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। दैट इज वेयर द रिवाइवल ऑफ दिस नामली किचन स्टार्टेड, द प्लान स्टार्टेड देयर। तो एक ये इस तरह का ये है कि इट हैज गॉट एज ऑथेंटिक एज थिंग्स कैन बी। अब हमने क्या किया है कि अब जितनी भी पुरानी रियासतें थी, जो मालवे की रियासतें, अच्छा मालवे की रियासत में मेन सीतामऊ हिजाइनिस थे, रतलाम हिजाइनिस थे, देन यू हैड पिपलोदा हिजाइनिस वाज देयर, जावरा नवाब साहब थे, and then you had parts of Indore, parts of Gwalior, and beach portion, the plateau, that was what was Malwa. So Sailana is there. So काफी सारी चीजें ठिकानों में और रियासतों में और स्टेट्स में काफी सारे लोगों के पास अब बहुत कम बची है, एंड एक धरोहर की तरह हो गई है ये चीजें। इट्स वेरी वेरी इट्स अ ट्रेजर एंड वैल्यूएबल। इनफैक्ट if I would like to tell you, in the 70s, 60s and 70s एक चलन चला था to revive these recipes, these forgotten, lost recipes, and that was initiated by Maharaja of Sailana, and he got this book, The Cooking Delights. और एक और नाम लेना चाहूंगा मैं इसी मालवे रीजन से, is Prince Richard Holkar, who is Yashwant Rao Maharaja's son. He and his wife Shalini Devi Holkar, they also joined hands together and they traveled all over the country and they got the foods from all over the region, and then they published in their book. It was called The Cooking of the Maharaja. Very interesting books. These two books are very, very interesting books. Now,